Assalamu alaikum students. I hope you peoples are fine with the grace of Allah Almighty. Welcome back to the test discussion lecture from biology subject that has been taken from chapter number 8 plant physiology. The test basically comprises series 9 for first year fresh biology student and series 13 for first year regular biology students. So let's move toward your today's test. Bismillahirrahmanirrahim. Section 1 multiple choice question. Question number 1. Through which structure does most of the transpiration occur? Transpiration, that is basically the conversion of water molecule from the surface of the leaf into the atmosphere. पानी के ड्रॉपलेट्स का पत्तों की सतह या पौधे की सतह से हवा के अंदर शामिल होना या इवेपोरेट होने का फिनोमेना ट्रांसपायरेशन कहलाता है और ये ट्रांसपायरेशन बेसिकली according to an estimate, almost 80% of transpiration takes place through the stomata, that are the teeny pores present in the leaf surface and some also present in the stem. So option D will be right here. Question number 2. Which of the following is not a function of the xylem? Xylem basically one of the conducting tissues, xylem and the phloem. Xylem is basically responsible for transportation of water. In addition to the water, some minerals are also transported from xylem. Xylem also provide mechanical transport while the transportation of food, option B, is basically the function of phloem. This is not the function of the xylem, so option B will be right here. Question number 3. The plant that are adapted to survive in the dry conditions, पौधों को उनकी लिविंग कंडीशंस की बेस पे कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. सो द टर्म ज़ीरो मीन ड्राई एंड फाइट मीन प्लांट. ऐसे पौधे जो ड्राई कंडीशंस में रहें उन्हें हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं, जो पानी में रहें उन्हें हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहें उन्हें मीज़ोफाइट्स बोलते हैं और जो समुंदर के अंदर या सॉल्टी इन्वायरमेंट में पाए जाएँ उन्हें हम हेलोफाइट्स बोलते हैं. Question number 4. Mesophytes are adapted to survive in. Meso mean moderate and phyte mean plant. So the plant that are adapted to survive in moderate environment will be called as mesophytes. Question number 5. Mesophyll tissues present in the leaf between. सो यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम अपर साइड पे मौजूद ब्राउन कलर में मेंशन की जाने वाली अपर एपिडर्मिस और लोअर साइड पे मौजूद सेम ब्राउन शेड में मेंशन की जाने वाली लोअर एपिडर्मिस के दरमियान जितने भी ग्रीन कलर में सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सेल मिलके मेसोफिल टिश्यूज़ का पोर्शन बनाते हैं जिनको लीफ के अंदर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज़ एंड स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यूज़. सो मूव बैक टुवर्ड योर क्वेश्चन. मेसोफिल टिश्यूज़ इज़ प्रेजेंट इन द लीफ. लीफ में जो मेसोफिल टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं वो कहाँ मौजूद हैं? वो अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान में मौजूद हैं. उनकी लोकेशन इस जगह पे डिस्क्राइब की जाती है. लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. Water and minerals enter the root एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम सॉइल बाय. ज़मीन से पानी जज्ब करने के लिए पानी और इसके साथ मौजूद कुछ नमकियात पौधा किस फिनोमिना के ज़रिए एब्जॉर्ब करेगा? दैट इज़ बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. वाटर मूव बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय द फिनोमिना ऑफ osmosis which takes place without expenditure of energy, while minerals move with the water move by passive transport by the phenomena of osmosis, while the mineral takes place by active transport mechanism. Question number 7. Which of the following tissue is responsible for secondary growth? Secondary growth means increase in the girth of the plant body. पौधे की मोटाई या पौधे की चौड़ाई में इजाफा होना जिसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. सो कौन से वो सेल होंगे जो पौधे के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करवाए होंगे? अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई होप कि आप सबने इसका आंसर करेक्ट ही मार्क किया होगा. यस, दैट विल बी कैम्बियम टिश्यूज़ जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी दोनों टाइप से सेकेंडरी ग्रोथ करवाएंगी. ईदर इट इज़ द वेस्क्यूलर कैम्बियम और इट इज़ अ कॉर्क कैम्बियम. क्वेश्चन नंबर 8. वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन मीन्स इंडक्शन ऑफ द फ्लावर एट लो टेम्परेचर. पौधों के अंदर लो टेम्परेचर मीन्स 4 डिग्री सेंटीग्रेड की मौजूदगी में या फिर वर्नालिन हार्मोन की मौजूदगी में फ्लावर के इंड्यूस होने का फिनोमिना वर्नलाइजेशन कहलाता है. सो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्नलाइजेशन किस मदद से होगा? दैट इज़ बेसिकली टेक्स प्लेस ड्यू टू द लो टेम्परेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी के अंदर. क्वेश्चन नंबर 10.
Which of the following has a perforated cell wall? Perforated means perforation. Perforation means opening, pore सेल के अंदर सुराख या रास्ता मौजूद होने को हम लोग परफोरेशंस बोलते हैं. सो जाइलम के किस स्ट्रक्चर के अंदर ये ओपनिंग्स मौजूद होंगी? दैट विल बी वेसल्स. क्वेश्चन नंबर 9 स्किप हो गया. क्वेश्चन नंबर 9, अ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट फाउंड इन द प्लांट सेल आर कॉल्ड. पौधों के अंदर लाइट को डिटेक्ट करने वाले और लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जो मौजूद होते हैं दैट आर कॉल्ड फाइटोक्रोम. फाइटो मीन लाइट एंड क्रोम मीन पिगमेंट. सो ऐसे पिगमेंट जो लाइट सेंसिटिव होंगे उन्हें हम लोग फाइटोक्रोम्स कहते हैं. So here is the completion of multiple choice question. Let's move toward the short question portion of the test. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 1. What are halophytes? Halo mean salt and phyte mean plant. So those plants that inhabit saline soil or salty environment are called halophytes. Page number 196. Question number 2. Differentiate between long day plant and short day plant. A very easy question. Directly आपके बुक में मेंशन किया गया है. शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट की क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डेफिनेशन और एग्जांपल इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करनी थी. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज अ वेक्यूलर पाथवे? पेज नंबर 185. वेक्यूलर पाथवे द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वेक्यूल टू वेक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और वेक्यूल से होती हुई दूसरे सेल के वेक्यूल में मटेरियल जो एंटर होकर ट्रांसपोर्ट होंगे उन्हें हम लोग वेक्यूलर पाथवे का नाम देते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज टेंशन इन ट्रांसपायरेशन पुल मैकेनिज्म? फ्लोएम के फंक्शन में ट्रांसपायरेशन पुल मैकेनिज्म क्रिएट होता है जिसमें TACT मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया जाता है, जिसके लास्ट पॉइंट में आपने पेज नंबर 186 से टेंशन को डिस्क्राइब करना था. क्वेश्चन नंबर 5. डिफाइन फ्लोएम एंड स्टेट इट्स रोल इन प्लांट. पेज नंबर 187. फ्लोएम की डेफिनेशन और इसके फंक्शन के लिए सेम पेज के नीचे पैराग्राफ में आपको इसके फंक्शन नजर आएंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर. इन एडिशन इसके पेरेन्काइमा टिश्यूज कुछ मटेरियल को अपने अंदर स्टोर भी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. हाउ इज सुक्रोज लोडेड इनटू द सीव ट्यूब सेल्स? सो फ्लोएम की फंक्शनिंग में सीव ट्यूब सेल्स में सुक्रोज मटेरियल कैसे लोड होगा? लीफ से, लीफ के मेसोफिल टिश्यूज से कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल से सीव ट्यूब सेल्स के अंदर जो इसके ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है जो आपकी बुक के पेज नंबर 188 के सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है डिफ्यूजन फिनोमिना, ये आपने इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक. सोर्स और सिंक का डिफरेंस प्रॉपर टेबल के साथ डिफरेंट हेडिंग्स के साथ आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करना था. क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन ब्रीफली सेल डिफ्रेंशिएशन फेज. सो सेल डिफ्रेंशिएशन फेज पेज नंबर 191 के ऊपर मेंशन है जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर राइट अप करना था. क्वेश्चन नंबर 9. डिफाइन एनुअल रिंग्स इन द वुडी प्लांट एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड. एनुअल रिंग्स की डेफिनेशन पेज नंबर 192 और इनकी फॉर्मेशन इसी के सेकंड पैराग्राफ के लास्ट पॉइंट्स में मेंशन है जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर राइट अप करना था. क्वेश्चन नंबर 10. डिफ्रेंशिएट बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड. हार्टवुड जो कि सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द वुड है जबकि सैपवुड हार्टवुड हार्ड पोर्शन इनर पार्ट है, सैपवुड सॉफ्ट पोर्शन आउटर पोर्शन होंगी. इनका डिफरेंस आपने फंक्शन के साथ टेबल के अंदर मेंशन करना था. लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. गिव द इंटर कन्वर्जन ऑफ फाइटोक्रोम P660 टू P730. पेज नंबर 198 में फाइटोक्रोम की कन्वर्जन बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट एंड फार रेड लाइट आपने इस क्वेश्चन में मेंशन करनी थी. So let's move toward the last portion of the test, that is long question. Question number 1. Describe the mechanism of opening and closing of stomata. Stomata की opening और closing पेज नंबर 181 पे दो हाइपोथेसिस के साथ मेंशन है, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस एंड इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन. दोनों आपसे इस क्वेश्चन में डिमांड की जा रही थी. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन? एक्सप्लेन थर्मोरेगुलेटरी अडेप्टेशन इन प्लांट टू लो एंड हाई टेम्परेचर. पेज नंबर 197. थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन और हाई एंड लो टेम्परेचर में पाई जाने वाली उनके अंदर अडेप्टेशन आपने इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन करनी थी. So here is the completion of our today's test. I hope you will get the point and your confusions will surely be cleared. अगर फर्दर कोई confusion हो you people can ask. Thank you so much for today's lecture. Allah Hafiz.